My dear students of Standard 8, and today we are going to see question answer of chapter number 1, and that is arrival of Europeans in India. Friends, you might be let us go through the chapter once again. You might be having seen that the Europeans they come to in our country, and they used to trade with our country due to our prosperity, silk, muslin, Indian spices. They usually come to our country and visit to our country, and then they are coming to the land route. Okay, Iraq, Iran, and Afghanistan. Meanwhile, the land route has blocked by the Muslim Turks. They captured the Constantinople, and they forced to come through the sea route. Okay, so Columbus tried it, but he discovered accidentally America, and then after Columbus mistake was rectified by the Amerigo Vespucci and give it the name by his name. They got the continent name America, and then we see that ultimately Columbus get the success, a Portuguese sailor, and in the year 1498, then they took the permission from the King Jamorin and started trading with India. After them, many people arrived in our country, and they were the Dutch, they were from the Denmark, Britishers. William Hawkins is the first person, okay, who landed their ship on the Surat. After that, French came. Okay, so this battle of Plassey, battle of Buxar, all such thing we have discussed in the chapter. So let us go to the Q&A session. Here is your first question. Okay, well, the question is, why did the Europeans feel the need to discover a new sea route to India? 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है. सो ब्रिटिशर्स को क्या ज़रूरत पड़ी? वी आई जस्ट ऑलरेडी डिस्कस एंड लेट अस गो थ्रू इट. सी, आवर कंट्री हैज़ ए डिस्टिंक्ट इन द वर्ल्ड. आवर पोजिशन इज़ ए यूनिकॉर्न. हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कंट्री एट द टाइम सुपर पावर था. द पीपल ऑफ वेरियस कंट्री वेयर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी. सो आजकल तो हम लोग दूसरे कंट्री में जाके पढ़ना बहुत मतलब प्राइड फील करते हैं, बट एट द टाइम रिवर्स था. ओके, मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वेर ईगर टू एंटर इन टू ट्रेड विद आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट. ओके, सो इंडिया के साथ they feel proud and they were eager to do business and all such things. And yes, now next point, fourth point. Earlier the merchant from various countries came to India from the northwest by land route for the trading purpose. So मैंने अभी जो आपको रूट बताया वहाँ से वो लोग एंटर होते थे. And then for years the Arab traders undertook trade through the land route, but has situation changed. ट्रेड थ्रू द लैंड हैड रूट स्टॉप. तो इस तरह से जो रूट स्टॉप हो गया तो अब उनको वाया सी आना पड़ेगा. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेल, ये छोटा सा क्वेश्चन है एंड ये आपको 1 या 2 मार्क में आ सकता है. हु वेर द फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया? ओके, सो आंसर इज पोर्टुगीज. 1498 में आए थे. और आंसर का पार्ट नहीं बट इन्फॉर्म कर देता हूँ. दे लिव इंडिया इन 1961. ओके, ब्रिटिशर्स के बाद गए थे वो लोग. डेट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट चैप्टर्स. पोर्टुगीज वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया. आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बट आ गया तो 1-2 मार्क में आ सकता है. ओके, 1 मार्क में आएगा, 2 में तो पूछूंगा ही नहीं मैं. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज बिटवीन whom was the battle of Plassey fought and what were its result. तो ये 4 या 5 मार्क में आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर स्टाइल. नाउ सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1753. सो 1753 में वो नवाब बनता है. ही हैड ओवरहेलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिशर्स. सो ही डोंट लाइक द ब्रिटिशर्स सिंपली. द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर of Sirajuddaulah by conspiring against him so that would not remain the throne of Bengal. So they don't like, even Britishers don't like the Sirajuddaulah and they want कि इसको कैसे भी करके हम लोग यहाँ से हटा दें. Okay, so there were a frequent conflict with the British merchant regarding the payment of taxes. So Britishers were not regular in the payment of the taxes and Sirajuddaulah won them. When the British merchant failed to pay taxes which were applicable to both Indians and foreign merchants, the situation came to boil. So government get angry and
आजकल तो इनकम टैक्स के रेट बढ़ते हैं, बट एट दैट टाइम सिराजुद्दौला ने उनको वॉर्न किया. He ordered the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules, and trade as per the terms and conditions. So what they did, they simply fortified, यानी जो किलेबंदी बोलते हैं ना, and that is without the permission of the सिराजुद्दौला. So उससे जो बंगाल का नवाब है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है. Now next point, इमेज के नीचे वाला. This provocation was enough for the सिराजुद्दौला to after war, and he succeeded in expelling the ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता. ओके, सो ये कोलकाता का रिसेंट नेम है. सो सिराजुद्दौला को जैसे ही मतलब गुस्सा है, उसने एक छोटी सी आर्मी भेजी, उसने सारे के सारे जितने भी शिप्स थे सब डिस्ट्रॉय कर दिए. द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला विद अ प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन टू बंगाल टू हिम एंड कन्विंस हिम टू ज्वाइन देयर साइड. रॉबर्ट क्लाइव नोस वन थिंग वेरी वेल, अगर वो डायरेक्ट अटैक करता है तो देर इज़ नो चांसेस वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट विन कर पाएगा. सो व्हाट दे डिड, उसने थोड़ा एक वी कैन से एक प्लान बनाया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उन्होंने जो उनका सेनापति होता है कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र, उसको कन्विंस किया कि अगर आप जानबूझकर हमारी साइड से अगर हार जाते हो तो हम आपको नवाब का नेक्स्ट बंगाल का नया नवाब बना देंगे. एंड थिंग वर्क्स with his help. Robert Clive defeated and murdered सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey. ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि थिंग्स गॉट वर्क इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड यहाँ पर बैटल ऑफ प्लाजी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो यहाँ से ब्रिटिश रूल का स्टार्टिंग होता है. ओके, एंड दस दिस वॉर वॉज कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो ये इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. वेल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, सो वाई डिड द बैटल ऑफ बक्सर अकर एंड व्हाट वाज हिज रिजल्ट. अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लाजी और बक्सर एग्जाम आप अगर एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज ए नवाब ऑफ बंगाल. सो बैटल ऑफ प्लाजी हम लोग देख चुके हैं कि मीर जाफर नवाब बन जाते हैं. रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड. तो जैसे ये वॉर जीत जाते हैं वो इंग्लैंड चला जाता है रॉबर्ट क्लाइव. विद द पैसेज ऑफ द टाइम मीर जाफर बिकम हॉस्टाइल टूवर्ड द ब्रिटिशर्स. सो मीर जाफर मतलब जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं वही वो फॉलो कर रहा है. एंड फिर वो कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा है कि मैं राजा हूँ तो ये मुझे क्यों कमांड कर रहे हैं. एंड देन मीर जाफर कुछ प्लानिंग कर पाता है इससे पहले ही. द कंपनी डिसाइड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर काजिम. तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नाउ मीर जाफर कैन बी डेंजर फॉर अस. सो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया एंड उसके सन इन लॉ मीर काजिम को अपॉइंट कर दिया. मीर काजिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर. सी इंसान अगर डिसिप्लिन हो ना तो वो हमेशा चीज़ों को स्टेप टू स्टेप ही करेगा. अगेन मीर काजिम भी बहुत एफिशिएंट था. ही नो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्यों मीर जाफर को हटाया, व्हाट इज़ देयर एक्सपेक्टेशन. लेकिन कहीं ना कहीं मीर काजिम तो मीर जाफर से भी स्मार्ट था. अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है. वन मिनट. द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विद ईच अदर. सो मीर काजिम ने बोला, सी आई एम द नवाब एंड यू हैव टू पे द टैक्स रेगुलरली. एंड ब्रिटिशर्स में और मीर काजिम में अगेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है. इन 1763 मीर काजिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप. तो उसने एक छोटा सा प्लान बनाया था ब्रिटिशर्स को काउंटर करने के लिए, बट अल्टीमेटली वो सक्सेस नहीं हो पाता है और उसको मतलब भागना पड़ जाता है. ही रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेज ऑफ नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड. आई डोंट नो, बट उन्होंने पहले क्वेश्चन में ये लिखा था कि दे मर्डर सिराजुद्दौला. आई थिंक नहीं किया होगा. सो ये ट्रिपल अलायंस मिला के मीर कासिम ब्रिटिशर्स को अटैक करने की सोचता है. एंड मीनवाइल यहाँ पे आंसर में शो नहीं किया है, बट मीर जाफर को वो लोग फिर से नवाब बना देते हैं. एच पॉइंट पे आ जाते हैं. देयर कंबाइंड फोर्सेज मीट एट
met the company forces at the Buxar in 1764. Okay, so Battle of Plassey 1757 and Battle of Buxar 1764 लड़ाई होती है. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन द वॉर एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध मीन्स लखनऊ एंड द मुगल एम्पर वॉज अंडर देयर कंट्रोल. तो ये सारे किंगडम ऑफ ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाते हैं. एंड रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक अ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. एंड अगेन जैसे बैटल ऑफ बक्सर का सक्सेस होता है, रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड से इंडिया में आता है टू कंट्रोल द सच थिंग्स. That's how the East India Company, a trading company, emerged a political power in the subcontinent of India. So जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे बिजनेस करने आई थी, अल्टीमेटली यहाँ पर अपना पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कर लेती है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ डिड द पोर्टुगीज रूल कम टू एन एंड. तो ब्रिटिश पोर्टुगीज पहले इंडिया में आए थे, तो ऑफकोर्स ग्रो भी कर रहे थे, लेकिन उनका रूल कैसे ख़त्म हो गया. So let's begin. In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. So पूरा जो इंडिया का, अगर आप लोग अरेबियन सी वाला पार्ट जानते हो, वेस्टर्न पार्ट, तो वहाँ पे तो उन्होंने ट्रेडिंग इस्टेब्लिश किए, बट बे ऑफ बंगाल साइड, ईस्टर्न साइड भी उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए. एट दिस टाइम द मुगल एम्पर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली. तो उस टाइम पे मुगल शाहजहाँ का रूल था. द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन द शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज. सो टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग होती रहती थी कि ब्रिटिशर्स मतलब पोर्टुगीज यहाँ पे क्या करते हैं. एंड शाहजहाँ गॉट ऑल द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली. दस द फोर्ट ऑफ द हुगली वेयर डिमोलिश एंड द शिप वेयर बर्न्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ द एम्पर. सो जब उनको लगा कि उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा हो गई है, पेमेंट नहीं करते हैं, जो भी इशू रहा होगा, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, बट उन्होंने उनके सारे शिप्स बर्न कर दिए. In this way, Portuguese rule came to an end, and with the expectation of their territory of दीव दमन एंड गोवा. तो उनको बस सिर्फ एक दीव दमन एंड गोवा तक ही परमिशन थी, बाकी अब वो कहीं पे भी ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स. जो हमारा एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, वेल द फर्स्ट ब्लैंक, डैश वॉज एन इटालियन हु एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. ऑफकोर्स ये कोलम्बस ही है, आंसर नीचे मेंशन भी किया हुआ है. एंड इमेज ऐप पे आपको पहले से PDF मिल चुका है. इट जस्ट फॉर द योर कन्वीनियंस. एंड सेकंड, रॉबर्ट क्लाइव कंस्पायर टू मर्डर सिराजुद्दौला. ओके फ्रेंड्स, सो आपको आपके CW में ये सारे क्वेश्चन आंसर शो करने हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.